Hello friends, I welcome all of you for this technical presentation on thermal engineering challenges for 21st century. In this presentation, we are going to focus mainly on what are the upcoming challenges of 21st century as far as thermal engineering branch or case is concerned. Now, before proceeding towards the presentation, let us know each other. Myself, Professor D.S. Gudke, I am an author and I have authored few technical books as well as I have authored few non-technical books or self-improvement books as well. Recently, on the occasion of 15th August 2020, I have released my first ever self-help category book entitled as How to Take Back Control of Your Life. There, I have focused on one among the challenge of this 21st century. Means we can say that in this 21st century we are having lot many facilities, we are having lot many abilities, and we are using or we are having maximum utilization of all the resources which are available to you. As a result of utilization of all the resources, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ अब घर बैठे हम सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन घर बैठ के करने में हमें ये एक पैंडेमिक के समय जो लिमिटेशंस आ रहे हैं, या तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है जो बढ़ गई है, या तो आप बोल सकते हैं कि यू हैव फेस द लोनलीनेस और लॉट मेनी प्रॉब्लम्स आते हैं. I have made maximum utilization of that pandemic time, and in order to help all of you, I have written and came up with a book which is entitled as How to Take Back Control of Your Life. Now, where you can find this book? You can find this book on Amazon Kindle. You might be knowing that platform, or if it is not possible to access that Amazon Kindle, or you are not aware of that Amazon Kindle, what you can do? You have to wait until this presentation ends. At the end of this presentation, our team will be sharing a link. You can just click on that link and you have to fill up your personal details. That may be simple your name, email ID, and so on. And the copy of that book will be in your inbox. Okay, and here where you are not expected to pay any specific amount. If you wish, you can pay 1 rupees as well. If you wish, you can pay 1,000. If you wish, you can pay 10,000. We have kept a very special offer for all the attendees of this webinar. You can pay as you wish and you can have your copy of How to Take Back Control of Your Life. और एक ऐसा बुक है जिसके साथ दुनिया में पहली बार किसी ने ट्राई नहीं किया है, ये इसके साथ हमने एक वर्क बुक दिया है ताकि जो भी आपने लर्निंग किया है वो लर्निंग आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं. एंड हियर दैट बुक बहुत बड़ा बुक नहीं है, ऑलमोस्ट 70 to 73 पेजेस आर देयर. आउट ऑफ दैट यू कैन स्किप फर्स्ट 3-4 pages, that may be cover page, that may be end page, then forward, like that you can take out only 60 to 65 core important things are there on those 60 to 65 pages. Out of that, for each day, here we are going to complete 14-day challenge workbook. Means for each day we have written some things, and based on that you have to solve some questionnaires so that you can enhance your experiences of life. Okay, now here I will not invest much of the time on what is inside their book. The link of that function as well, I am going to put it in the description box. You can check out there and you can enjoy what that function, so that you will come to know what is inside that book. Okay, let us go ahead. I'm a speaker where I'm interacting with the youth of various junior colleges, schools, engineering colleges, law colleges, or a few of the companies I'm interacting with in order to enhance the productivity, not only in their personal life, in professional life as well. That also almost 700 plus videos are there as far as that speaker and storyteller is concerned. The link of those videos, or where you can find the platform on which you are going to get all those 700 videos, I'm going to share, or our team will be sharing up to the end of this function, up to the end of this webinar. You can have a look at it and you can make maximum utilization of it. And here, as per the title of this seminar or webinar represents, that is Thermal Engineering Challenges of 21st Century. There you can find how I can help or how I can correlate it as a technocrat. And under this e-content developer, my vision or mission, both the statements are there. You might be knowing it.
Out of that, what I want to have in upcoming 10 to 15 years, I want to have this world to be more peaceful, joyful, and loving. And for that, different case studies I have referred. I have referred the case study on Bhutan, Denmark, then Netherlands, and I have studied the education system at the consecutive countries. And what I have felt, जहाँ पे भी मैंने भूटान का थोड़ा स्टडी किया, डेनमार्क है, नेदरलैंड है, एंड देयर आई हैव फाउंड दैट द हैप्पीनेस लेवल ऑफ दोज कंट्रीज, मतलब जो ये भूटान है या तो नेदरलैंड है, उन्होंने एक हैप्पीनेस का स्केल इन्वेंट किया है कि हम कितने खुश हैं नाउ। एंड ऑन दैट स्केल जो भी कंट्रीज हमने अभी आपको नाम बताए कि भूटान है, नेदरलैंड है, डेनमार्क है, ये सबसे ऊपर है, और हमारा जो इंडिया है अभी भी बहुत नीचे है। तो हमारे देश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं ताकि जो हमारा हैप्पीनेस है वो बढ़ता रहे। रिगार्डिंग दैट आई एम हैविंग टू सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज, जो बाकी देशों का हमने स्टडी किया है, जो अभी हमारे बाद इंडिपेंडेंस उन्हें मिला है या तो फ्रीडम मिला है, फिर भी आज वो डेवलप कंट्रीज है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतना मैन पावर है, स्टिल वी आर लैकिंग, or what we can say still we are developing country. The reason behind that is कि हमारे देश में जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी एजुकेशन मिल रहा है उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ पे हमें बहुत सारी जो अमाउंट है पे करनी होती है, और हर एक के लिए वो फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप भूटान का एग्जांपल ले लेते हैं, या कि जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल कम टू नो कि वो वहाँ पे भूटान में क्या करते हैं, डेनमार्क में क्या करते हैं, नीदरलैंड में क्या करते हैं, इन डिटेल यू विल कम टू नो। स्टिल आई विल पोस्ट इट कि उनके देश में क्या है कि आपको जो मर्जी का एजुकेशन लेना है और जहाँ पे लेना है, the education of your choice and the place at which you want to have that education, all those things are free of cost, first thing. And second thing जो है, all the medical expenses are borne by the government. और यू कैन हैव अ लुक एट आवर लाइव्स और आवर पेरेंट्स लाइव्स, उन्होंने कहाँ पे उनकी लाइफ इन्वेस्ट की है कि उन्होंने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी जो शिक्षा है या अच्छा जो एजुकेशन है वो मिल पाए, और जो भी मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और वहाँ पे हमारी जो सारी एनर्जी है या जो हमारे रिसोर्सेस है दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट। Okay, now for regarding that as well, I have prepared almost 700 plus videos that may be technique that may that are covering your personal and professional life. You can make use of it. By the end of this presentation, our team will be sharing the link of the platform where all those almost 700 plus videos are available. Okay, and finally, जो है, I am also a professor working in Singhad Institute of Technology, Lonavala, and I am trying to achieve all these things, and or rather, you can say that I am trying to change the world the way in which I can, along with my students. Okay. Now let us go ahead what we are going to cover during this entire presentation. Firstly, we will be covering the overview, or in order to understand the challenges of 21st century, we must know what we have achieved in 20th century so that we can make maximum utilization of all those resources, and we can overcome the challenges of 21st century. Secondly, we are going to have our focus in energy scenario, and in order to have a look at this energy scenario we are going to refer the report which is prepared by National Academy of Engineering along with the National Institute of Science. Okay, that energy scenario or energy we are going to refer for our understanding of better understanding of the challenges of 21st century. Followed by that, we are going to have our focus on the challenges, most preferably almost 14 challenges are there, and out of that, on how many challenges we along with our team have done something and come up with some solutions, that also we are going to discuss as a part of case studies under part 4. Okay, now before moving ahead, let us have a close look at this quote. Education is a journey, let's enjoy it. ओके, ये दिखने में तो बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक दिस जर्नी एंजॉयबल, विच थिंग्स वी नीड टू डू।
और आई होप सो दैट कि ये जो प्रेजेंटेशन है या जो वेबिनार है ये स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके प्रोफेसर तक पहुंचाना है। अगर आप एज अ प्रोफेसर देख रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, ताकि दोनों को, या तो हम बोल सकते हैं कि जो वन साइडेड लव है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। दैट ट्रांजैक्शन शुड बी टू साइडेड सो दैट इट विल बिकम सक्सेसफुल। Now, what are the challenges of 21st century? बाकी challenges वो रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के पहले what is the 21st century challenge as far as our education sector is concerned. Okay. Now let us go ahead with a simple case study which is done by the University of Virginia. Now, recently, after this pandemic situation has happened, the University of Virginia has conducted a survey. And in that survey, what they have done? In that survey, what they have done, they have chosen some certain set of peoples, including men as well as women. And what they have chosen? They have chosen a room where sufficient amount of light, electricity, all the amenities are there. And what we need to do? The attendees or the participants have to go inside that room and they have to sit inside that room without internet, without any book, pen, page, paper. Means what we can say, carrying nothing. They have to go there and they have to spend 15 minutes, only 15 minutes along with themselves only. और वहां पे क्या था, समय बिताने के लिए वहां पे एक टेबल था, टेबल के सामने एक कुर्सी रखी थी, वहां पे जाके बैठना है। he or she has to go there and they have to spend minimum 15 minutes along with themselves. और वहां पे क्या रखा था, जो टेबल था, इन एट द सेंटर ऑफ द टेबल वन प्रोब वाज देयर एंड टू दैट probe we have supplied the electric current. And regarding, if you are going to touch that probe, the electric shock you are going to get, that information was already given to all the participants. मतलब एक ऐसा प्रोब रखा था जिसे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, और इसकी जानकारी सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को दी थी पहले ही। एंड शॉकिंगली क्या हो गया कि ये जो 5000 लोगों का सर्वे हुआ, इन दिस एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड, ऑलमोस्ट 5000 पार्टिसिपेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड। आउट ऑफ दैट जितने भी मेन थे, तो उन्होंने क्या कर लिया कि आउट ऑफ दोज मेनी मेंस ऑलमोस्ट 65% मेन व्हाट दे हैव चोजन टू गेट शॉक इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद देमसेल्व्स। मतलब खुद के साथ ना बैठ के उन्होंने शॉक लगाना मंजूर कर लिया। ओके, समझ पा रहे हैं? Almost 65% means chosen to get electric shock instead of sitting with themselves. And the women which have participated in this experiment, out of those women, almost 25% women what they have done, उन्होंने भी वही चूज किया कि इलेक्ट्रिक शॉक चूज किया, ताकि ना कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। This is the what I can say. This is the most important challenge of 21st century. We are going to deal with the millennium generation and they are having lot many problems, or what we can say, we are having lot many opportunities where we can work with them and we can come up with some better solutions, so that their concentration capability, their understanding ability, their ability to sit with themselves, all those things we need to take into consideration and we have to work on that. Now here, in order to solve this problem, what our team has done. Now almost as far as that engineering education is concerned, or the any graduation is concerned, in 1 hour 60 minutes are there. Means for any subject, if 1 hour is allocated, that hour is consisting of 60 minutes. And what we are suggesting to our professors or students as well, we are going to divide those 60 minutes into different parts. ओके, आई एम चूजिंग 18 मिनट्स इंटू 3। मतलब हम क्या करते हैं, 18 मिनट का एक स्लॉट करते हैं, कितने हो गए, 18 इंटू 3 स्लॉट्स हो गए, 54 मिनट्स हो गए। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 6 more minutes इन दैट क्लास। तो जो 6 मिनट बचे हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसके लिए देते हैं, या तो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस उन्हें क्या दे सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो 6 मिनट्स है यू कैन यूज टू क्रिएट द ह्यूमर। क्योंकि ह्यूमर नहीं रहेगा तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा। अभी हमने 18 मिनट ही क्यों लिया है,
द स्टूडेंट्स विथ विच वी आर गोइंग टू डील एज अ प्रोफेसर, या तो जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई सेशन वगैरह ले रहे हैं या किसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो दे शुड नो दैट द अटेंशन स्पैन ऑफ मिलेनियम जनरेशन इज ओनली 18 मिनट्स। तो उन 18 मिनट्स तक ही वो एक ही जगह पे बैठ सकते हैं और एक ही जो इंसान सामने बैठा है उसकी बातें भी सुन सकते हैं। कितने मिनट के लिए? खाली 18 मिनट्स। So that I have divided my lecture into 18 minutes so that they can have their maximum attention what is going on inside the class. First 18 minutes will be over, then I'm going to use the 2 minutes which I do have for creating sense of humor or giving some extra information which is apart from the syllabus. Okay, and like that 18 to 18 minutes of a lecture, actual syllabus, 2 minutes for creating sense of humor or giving additional information. Like that, 3 slots I can have and easily I can finish up my class. Okay, this is the biggest challenge along with what we are doing और अदर वे आर सजेस्टिंग। इसके लिए हमने क्या किया है, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट्स मिले हैं वो अगर आपको और अच्छे से जानने हैं तो उसकी रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए यू हैव टू राइट अस। जो हमारा ईमेल है वो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड बाय आवर टीम। यू कैन राइट टू अस, वी विल बी हैप्पी टू शेयर दोज रिपोर्ट्स विथ यू ऑल। ओके, let's get started. Now, in order to understand what are the challenges of 21st century, first we must know what we have achieved or what are our grandest accomplishments of 21st century. Sorry, 20th century. Now, first was the automobiles. Now, why these automobiles are much more important? Okay, because the development or the progress of any nation or any specific sector is governed by two factors majorly. First one is per capita, how much energy consumption that a region or that country does have, and second one, how much is their transportation system. यार आपको पता है अगर ये ऑटोमोबाइल्स ना होते तो हम अभी तक घोड़ा गाड़ी ही यूज कर रहे होते। कोई एक पगला आ गया और what he has think he has done some experiments and उसने क्या कर लिया कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बना लिया। सो दैट वाज आवर ग्रैंडेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। और जिसकी वजह से क्या हो गया है कि अभी यहाँ से वहां जाने में या तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया बहुत नजदीक आ गई है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना होता था। नाउ जो भी नई नई कंपनी आ रही है, या तो अभी रिसेंटली एक कंपनी है चाइना की, उन्होंने क्या बता दिया कि चाइना से लेके अगर मुझे न्यूयॉर्क तक जाना है तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है कि वो 2.5 घंटे में, कितने घंटे में, 2.5 आवर्स, विद इन 2.5 आवर्स वी कैन कवर अप अ डिस्टेंस फ्रॉम चाइना टू न्यूयॉर्क। सो दैट यू कैन थिंक अगर ये हो पाएगा तो हाउ मच कॉस्टिंग वी आर गोइंग टू सेव इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग बचेगा तो जो भी प्रोडक्ट्स हम वहां से यहाँ से वहां डिलीवर करने वाले हैं तो उनके प्राइसिंग में कितना ड्रॉप होगा। ओके, so that was our grandest accomplishment of 20th century. Second, that was airplanes. तो हमें पता है कि एरोप्लेन्स के लिए जो भी अभी हम फ्यूल वगैरह यूज कर रहे हैं, या तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें जितने भी सुधार है या जो भी चीजें हम कर पा रहे हैं, या तो अभी हमने 2.5 घंटे का बता दिया, लेकिन पहले अगर मुझे इंडिया से कहीं अमेरिका जाना होता था, या इंडिया से मुझे अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में जाना होता था, आई हैव ओनली वन वे, दैट इज आई हैव टू ट्रैवल थ्रू द सी। एंड इट इज, वो इतना, व्हाट वी कैन से, कि वो इतना फिजिबल नहीं था या तो इतना कम्बरसम नहीं था कि आसानी से हम जा सकते थे। समय लगने वाला बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स थी। लेकिन जैसे एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ वैसे ही हमें क्या हो गया कि वो जो सफर है वो हम आसानी से तय करने लगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज आवर ग्रैंडेस्ट अकम्पलिशमेंट, दैट वाज मोबाइल फोन्स। अगर अभी मान लीजिए कि हम ऐसे ही हाथ रख के अगर आपसे बात कर पाएंगे तो कितना बेहतर रहेगा। देखो वो किसने दिया है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि खाली हाथ से हम आने वाले समय में ऐसे मोबाइल फोन्स रहेंगे कि जिसमें हमें अभी जो डिवाइसेस ऐसे हम यूज कर रहे हैं ऐसा कुछ तो है। तो इन चीजों की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कर सकेंगे कि खाली हमारा जो पाम है वो यूज करके उस पर जो कुछ करना है कर सकेंगे और आसानी से यहाँ से वहां बात कर सकेंगे। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में दैट वाज नॉट पॉसिबल।
अगर हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट सम लेटर्स। और वो लेटर पहुंचने में कितना समय लगेगा वो तो आप सबको पता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस 20th सेंचुरी गैजेट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन टॉक। यहाँ पे बैठ के अमेरिका में कोई बैठा होगा तो उससे हम आसानी से बात कर पाएंगे। ओके। उसके साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन फर्स्टली वी विल कंप्लीट 20th सेंचुरी accomplishments and followed by which are the challenges which came up with these gadgets or these technologies। तो मान लीजिए नेक्स्ट वाज ग्रैंडेस्ट अकम्पलिशमेंट वाज रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में क्या है कि कोई भी चीज हम अगर ज्यादा देर तक उसे स्टोर करना चाहते हैं तो उसे ठंडी जगह पे रख सकते हैं। आर्टिफिशियली हम इससे क्या कर सकते हैं, बर्फ अगर किसी चीज के लिए चाहिए तो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन। Similar to our earlier invention, that was the this was the invention which shifted the whole refrigeration industry या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे बदलाव जो है वो ये रेफ्रिजरेशन ने किए। नाउ नेक्स्ट वाज द वेरी नाइस अकम्पलिशमेंट दैट वाज रेडियो। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के कोई अगर किसी हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अगर गा भी रहा है तो दैट इजीली वी कैन लिसन। फॉलोड बाय खाली लिसनिंग। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स आर देयर, ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक्स। रेडियो कम्स अंडर द ऑडिटरी, मतलब जो ऐसे लर्नर्स होते हैं कि खाली सुन के भी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो विजुअल होते हैं, मतलब वी कैन कोरिलेटेड विद टेलीविजन, टेलीविजन पे हम सुन भी सकते हैं, उनका वीडियो देख भी सकते हैं। और जो काइनेस्थेटिक्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर्स। तो दैट वाज these two were the biggest accomplishments of our 20th century, जिसकी वजह से जो ये हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशंस आ गए। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उनके जो भी विज्ञापन है, ये जो सारी इंडस्ट्री है ये किस पे डिपेंड है कि ये जो आपके रेडियो है, टेलीविजन है। अगर रेडियो टेलीविजन ना होता तो हम क्या नहीं कर सकते थे कि चाइना का कोई प्रोडक्ट है या जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो ना भी हो पाता, क्योंकि वहां से यहाँ जो भी विज्ञापन देने हैं, मैं मेरा प्रोडक्ट तो लेके आ जाऊंगा लेकिन लोगों को कैसे बता पाऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट में ये है वो है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे बैठ के जो भी हो इंडिया के प्रोडक्ट है उनके बारे में भी हम जान सकते हैं, विज्ञापन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही जो बाहर के प्रोडक्ट्स है उनके बारे में भी हम यहाँ बैठ के जान सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेडियो एंड टेलीविजन। So these were the grandest accomplishments of 20th century, followed by rockets as well as spacecrafts। अगर मुझे रेडियो और जो टीवी सेट्स है वो अच्छे से चलाने हैं, या तो जो भी हम वेदर फोरकास्टिंग है या बाकी जो भी अवकाश जो है हमारा या जो हमारी गैलेक्सी है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वहां पे लाइफ है या नहीं है, how I can trace out it। So that with the help of these two most important inventions, those are rockets and spacecrafts, with the help of that easily we can have a look at all those activities। Next comes very big accomplishment of 20th century, that is computer। ये जो कंप्यूटर था इसने सारी चीजों का काम कर लिया। और अभी जो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर है, लेजर्स है, लेजर की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा ही आसान हो गया है। या तो बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है, अगर कहीं पे कोई सर्जरी करनी है और वहां पे मुझे क्या करना नहीं पड़ेगा, उसे फाड़ना भी नहीं पड़ेगा। या तो we need not to have the stitches, firstly we have to tore it up, after that we have to have the operation, and after that we have to stitch it up। Like that is not required as far as lasers are concerned। with the help of lasers easily जो भी डिसलोकेट हुए बोन्स है या जो भी ल्यूकस है या जो भी कैंसरस सेल्स है, that easily we can kill with the help of lasers। and with the help of computers all the things are possible। Okay, the computers and what we can say the internet, these two are the grandest accomplishments with the help of which जो हमारा जो पूरी दुनिया है उसमें पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। अभी पहले क्या था कि मैं यहाँ पे बैठ के अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नॉलेज है तो वह कहाँ तक मैं दे सकता हूँ, जहां तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है, वो ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं है। By sitting over here, I can have my interaction with the entire world. Like that, many platforms are there, and through such a platform, I am talking with you all. Okay.
देन फॉलोड बाय जो अभी हमने बात की कि इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर्स, जिनके बिना जो भी दुनिया इतनी नजदीक आई है, दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी चीज मैं यहाँ पे बैठ के ऑर्डर कर सकता हूँ एज पर माई कन्वीनियंस। मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन मुझे अभी बनाने की आदत नहीं है या मुझे अभी बनाने का मूड नहीं है, सो दैट व्हाट आई कैन डू, जो भी आपका इंटरनेट है या कंप्यूटर है या मोबाइल फोन्स है और ऑप्टिकल फाइबर्स जो इन सारों को कनेक्ट करता है, तो व्हाट आई कैन डू, इजीली आई कैन क्या, इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और मुझे जो कुछ खाना चाहता हूँ मैं, वो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑर्डर कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कोई बुक पढ़ना है तो उसके लिए मुझे फिजिकली बुक लेके आके बैठने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे भी आपको असिस्टेंट मिल जाएंगे, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट्स है। वो क्या करेंगे कि आपको खाली उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है, आई वॉन्ट टू रीड सो एंड सो बुक ऑफ सो एंड सो ऑथर, तो आ जाएगा और वो जो बुक है वो रीड करना शुरू कर देगा। ओनली यू हैव टू लिसन टू इट। ओके, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर्स, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स। नाउ these were the grandest accomplishments of 20th century। लेकिन ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है उसके साथ बहुत सारे प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। मतलब या तो हम क्या बोल सकते हैं, वो दुधारी तलवार है, आगे से भी काट सकती है, पीछे से भी काट सकती है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। नाउ इसके लिए जो एनआईए है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, उन्होंने क्या किया था, अलोंग विद और इन कोलैबोरेशन विद नेशनल साइंस फाउंडेशन, दे हैव कॉल्ड फॉर एन कॉन्फ्रेंस एंड दैट कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2008। और वहां पे उन्होंने किन्हें बुलाया था, हर एक सेक्टर से जो भी रिनाउंड लोग हैं, और द पीपल और द persons we have done some greatest accomplishments in their respective fields, they have called all those technocrats, scientists, medical professionals, almost all the fields they have covered, and they have called all the experts from different industries, and they have taken out a conference, and in that conference they had that discussion what will be the challenges of this 20th century, and at the end of that conference they have concluded with the grand challenges for engineering इन 21st सेंचुरी। और उसमें लगभग उन्होंने 14 ग्रैंड चैलेंजेस की जो कैटेगरीज है दैट दे हैव रिकॉर्डेड। Now, in further consequent slides, what we are going to do, we are going to have our focus on what those 14 grand challenges were there, and after that what we are going to discuss in grand challenges में जो भी challenges पे हमने काम किया है, क्योंकि खाली ये challenges है बोल के उतना तो जरूरी नहीं होगा कि हमें उससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो हमने क्या किया है, जितना हम कर सकते थे, along with few of my colleagues and few of my students, what we have done, we have worked upon few of those 14 challenges, वो हम आपके साथ बात करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव यूर वैल्यूएबल इनपुट्स, वैल्यूएबल सजेशन, सो दैट अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है, सो दैट वी कैन हैव दोज इम्प्रूवमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो सारे लोगों के लिए और अच्छे से हम लेके आ सके और अच्छे से सर्व कर सके। इसलिए your feedback or valuable suggestions are most important. So let's go ahead with the 14 challenges. First comes, that is nothing but solar energy. Now, what are the challenges, or what we can say, instead of calling it as a challenges, we can call it as opportunities, so that we can become a part of solution। क्योंकि ज्यादातर problem क्या है कि everybody is a part of problem, but nobody tries to step forward and become a part of solution। तो वो चीज हम कर लेते हैं कि we will try to be on the part of solution side। तो इसमें दिक्कतें क्या क्या है कि इन एज पर एज दिस सोलर एनर्जी इज कंसर्न, इट इज ग्रीन, और व्हाट वी कैन से ग्रीन एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, बट द प्रॉब्लम इज इट्स कन्वर्जन एफिशिएंसी अलोंग विद द कॉस्टिंग। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है, हाउ वी कैन मेक दैट सोलर एनर्जी इकोनॉमिकल एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दोज सोलर एनर्जी। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नाउ व्हाट आपने अभी तक देखा होगा कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
Up till now, very few scientists or few agencies are there, those who are using the nuclear fusion type of energy sources. Why? Because it is really difficult to control the nuclear fusion reaction. And still, some scientists are working on that, how we can control it, because it acts as the greatest energy reservoir. Okay. Next challenge comes, that is nothing but the clean water. Now, in a further or consequent slides, you will come to know what we are trying to do with those clean waters. And one foundation is there whose name is Isha Foundation. Along with them, we have collaborated and we are running Rally for Rivers. वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें क्लीन वाटर कैसे मिल सकता है. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, अगर इंडिया का हम सर्वे कर लेते हैं तो जितनी भी नदियां हैं हमारी वो सीजनल बहुत ही कम थी. ओके, इंडिया में जितनी भी नदियां आप देख रहे हो वो सीजनल बहुत कम थी, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी नदियां हो गई कि वो खाली सीजनल हो गई. मतलब जो बारिश होगी तभी वो जो नदियां हैं उनके अंदर पानी का बहाव रहेगा, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है पूरा सूखा हो जाएगा. और वो जो बारिश है वो भी लगभग कितना हो गया, 40 to 50% जो पानी है बारिश का वो कम होता जा रहा है. तो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी हैव टू इंक्रीज द जो भी बेड है रिवर का उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट वी नीड टू एनहांस. एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एनहांस द ग्रीन कवर इन दैट रिवर बेड. ओके, एंड फॉर दैट वी व्हाट वी हैव टू डू, जो भी हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री थी पहली, वी हैव टू उससे रिवाइटलाइज करना पड़ेगा. जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री थी उसके लिए हम अलग अलग इनिशिएटिव्स कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू नो मोर रिगार्डिंग हाउ वी आर participating or how that Isha Foundation is improving the health and life and the water carrying capacity of all those rivers, you have to reach out to us. Our email IDs and contact numbers will be shared with you all at the end of presentation, so that we can come together, collaborate, and we can have all those changes which are expected. Okay. चलिए, नेक्स्ट ग्रैंड चैलेंज कम्स, दैट इज नथिंग बट ब्रेन फंक्शनिंग. ब्रेन फंक्शनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, लॉट मेनी इंप्रूवमेंट्स आर नेसेसरी बिकॉज राइट नाउ जो भी ब्रेन की कैपेसिटी है वी आर नॉट यूजिंग दैट ब्रेन कैपेसिटी टू द फुलेस्ट. तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे कैसे, जो भी ज्यादा यूज करता है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी प्रोग्रामिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं, या जो भी नए नए क्या बोल सकते हैं डिसीजेस है उन्हें रिकवर करने के लिए या रिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. दैट वाज द नेक्स्ट चैलेंज. देन एजुकेशन, where our this is our core area. In education lot many things we are trying. At the start only I have given that I want to have this education to be free across the India. जैसे ही ये हो जाएगा हर कोई एजुकेशन ले सकेगा और सारी जो चीजें हैं वो एजुकेशन पे डिपेंड है. हमारे यहाँ पे जो भी नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन अप हो जाएगी, जो भी क्राइम रेट है वो कम होता जाएगा, जो भी रेप के केसेस है वो कम होते जाएंगे. सारी जो चीजें हैं दोज आर इंटरकनेक्टेड विद द एजुकेशन. लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं कि मुझे अगर पेंटर बनना है तो जो भी हम ABCD सीखते हैं उसका सिग्निफिकेंस कहीं पे ज्यादा नहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा. तो हम एडवांस पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैसे दे सकते हैं, अगर किसी को पेंटर बनना है तो उसके रिगार्डिंग उसे एजुकेशन कैसे अवेलेबल करके दे सकते हैं. देन हाउ वी कैन मेक मैक्सिमम रिसोर्सेस अवेलेबल सो दैट जो भी उसका लर्निंग रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा रहेगा. और सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ पे कहीं पे भी हम पैसा कैसा कमा सकते हैं, how we can invest our money, where we can invest our money, how to improve your earning sources, what are the basic types of incomes, that may be passive income, active income, what comes under the passive income, what comes under the active income, whether we should thrive for the active income more or we should thrive for the passive income more. Like that education is not there. मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, जो भी है, या तो अभी हिंदी भी वर्ड हमें नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हमारा एज्युकेशन सिस्टम हमें एज्युकेशन दे रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, उपाशी पोटी आता आपणाला काय दिलं जातं की तत्वज्ञान. अगर मेरा पेट खाली है और सरस्वती माता भी मेरे सामने आके बैठ जाती है, दो ऑप्शन है मेरे पास. एक तो मैं पिछले 7-8 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ सिखाने के लिए सरस्वती माता आ जाती है, मेरे पास पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है कि वही जो पंच पकवान जो हम बोलते हैं खाने के लिए रखे हैं, जो ज्यादातर लोग हैं व्हाट दे विल प्रेफर,
सरस्वती माता से सीखना चाहेंगे या जो अपना पेट है उसकी आग बुझाना चाहेंगे? ज्यादातर लोग पेट की आग बुझाना चाहेंगे। तो जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तब तक जो भी एजुकेशन हमें मिल रहा है उसका ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस एजुकेशन को हम मटेरियलाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम दैट एजुकेशन, और ऐसा जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। Then next comes the carbon credits. Okay, earlier as well we have spoken regarding the Bhutan, Denmark, Netherlands. ये ऐसी कंट्रीज है, या तो भूटान के बारे में पता है तो भूटान ऐसा देश है जो वर्ल्ड में सबसे पहला कार्बन नेगेटिव देश है, एज वेल एज वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो भूटान है। अब ये कार्बन क्रेडिट या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स है, ओके, हमारे तरफ से, हमारे अंदर से, इंसान के अंदर से क्या आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे ही हम एक्सेल करते हैं वो बाहर देते हैं, दिस इज अ पोल्यूटेंट। जिससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, एडवांटेजेस भी है, लेकिन वी आर नॉट हैविंग दैट मेनी टेक्नोलॉजीज, और या तो उतनी फिजिबल टेक्नोलॉजीज नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर सके और उसे स्टोर कर सके। ओके, अगर वो कर लेते हैं तो दैट विल बी यूजफुल। लेकिन जो भूटान है वो कार्बन नेगेटिव कैसे है, वहां पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है उससे कई ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने जितने उनके यहाँ पे पेड़ है। तो हमारे इंडिया में कितने पेड़ की जरूरत है, हमारी पॉपुलेशन लगभग 145 सीआर है, तो हर एक इंसान के पीछे बिहाइंड एवरी पर्सन देयर मस्ट बी ऑलमोस्ट 872 to 75 trees are expected. But right now, how many trees are there? Almost 71 to 79 trees are there behind every person. Means this much big gap is there and we have to work on that so that in coming time जो भी हमारा जो ये कार्बन क्रेडिट्स है वो बढ़ पाए और हमारे देश भी कहीं ना कहीं पे कार्बन नेगेटिव छोड़िए लेकिन कार्बन न्यूट्रल तो हो, ताकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो हम और अच्छे से यूज कर सके और हमारा जो ग्रीन कवर है जो भी इंडिया का वो और भी हम बढ़ा सके। ओके, लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट चैलेंज। द नेक्स्ट चैलेंज इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू वैलिडेट दोज रिसर्च वी नीड टू डेवलप सम टूल्स फॉर द साइंटिफिक डिस्कवरीज। या तो हम बोल सकते हैं कि अभी 2000 अर्ली 2016 में एक इन्वेंशन हुआ कि जो हम अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे थे, एक्चुअली दैट इज नॉट अ फोर्स, दीज आर द वेव्स। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, और जो ये चीज समझने के लिए हमें इतने साल लग गए, अभी मान लीजिए कि अगर वो फोर्स नहीं है, वेव्स है, तो जितने भी हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज की है बाय अज्यूमिंग दैट इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सारी की सारी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है उन्हें फिर से हमें चैलेंज करना पड़ेगा, वो जो रिसर्च है वो हमें फिर से कैरी आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या लगेगा, जो भी टूल्स है फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी दैट वी नीड टू डेवलप। ओके, दैट विल बी द नेक्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट कम्स द हेल्थ। सारी चीजें तो बढ़ रही है, हमें जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी हम बोल सकते हैं जो भी सुविधाएं हैं वो उतनी मिल रही है, लेकिन देर इज नॉट अ सब्सटेंशियल एनहांसमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव a maximum challenge or more challenge in advanced health informatics so that we can enhance our life expectancy. Similarly, medical engineer, we have to engineer different medicines, जो भी equipments आ रहे हैं वो हमें और अच्छे से डिजाइन करने होंगे और अच्छे से इंजीनियर करने होंगे। There comes the next चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसके साथ जो भी टेरर आ रहा है दैट वी नीड टू रिड्यूस, और वी नीड टू मेक पीपल अवेयर दैट हाउ वी कैन यूज दैट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो रिस्टोर कैसे कर सकते हैं या तो उससे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या जो हमने अभी डिस्कशन किया कि जो हमारे इंडिया का ग्रीन कवर है वो जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बिहाइंड एवरी पर्सन 875 trees are expected, but how many are there? 71 to 79 are there, means almost 800 trees we need to plant। तो उसके लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत रहेगी, लेकिन जमीन ढूंढते समय ढूंढने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वी नीड टू टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। हमारी जो बालकनी है वो यूज कर सकते हैं, टेरेस है वो यूज कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स का जो कंसेप्ट है दैट वी कैन हाउ, और वो प्रपोज करके उसे ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। अभी ये जो वर्चुअल रियलिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, या तो वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज इफ आई विल सर्च फॉर अ मोबाइल फोन अक्रॉस द इंटरनेट,
तो जहां कहीं पे भी आप जाते हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया के हैंडलिंग वेबसाइट्स है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मोबाइल फोन का कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट दिखेगा. Okay, that is possible only because of that virtual reality, augmented reality, or artificial intelligence. And this is the biggest challenge of 21st century. Let us go ahead with the next challenge, that is nothing but nitrogen cycle हम कैसे maintain कर सकते हैं, ताकि while discussing the clean water challenge we have discussed, जो भी हमारी जमीन है उसके नीचे का 8 to 9 इंचेस का जो भी पोर्शन रहेगा, वो अगर ज्यादा अच्छा रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा जो भी क्रॉप्स ले रहे हैं वो हार्वेस्ट कर सकते हैं. वो अच्छा नहीं रहेगा तो जो भी लैंड है वो बारन हो जाएगी और वहां पे हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट कम्स दैट इज साइबर सिक्योरिटी. अभी जो लॉकडाउन शुरू हो गया उसमें आपने देखा रहेगा कि शुरुआत में सबको थोड़ी दिक्कतें हो गई, लेकिन आगे जाके किसी के बैंक अकाउंट से कोई अमाउंट सब डिडक्ट हो गया है, किसी ने कोई फ्रॉड कर लिया है, किसी ने कोई आपका जो डाटा है आपकी परमिशन के बिना यूज कर लिया है. तो जैसे ही हम घर में एक जगह का बैठ के जिस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, वैसे ही ये जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए जो स्पेस चाहिए होगा. अभी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, हडूप, ये टेक्नोलॉजी तो पता रहेंगी, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपका जो सारा डाटा है जो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे यूज करते हैं वो वहां पे जाके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेस हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा और उसकी सिक्योरिटी और भी बढ़ानी पड़ेगी. ओके. नाउ ये जो हमने चैलेंजेस देखे या ऑल दीज 14 चैलेंजेस, उसके लिए हमने फोर फ्रंट क्या रखा. ओके, वहां पे पहला जो था दैट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन. मीन्स व्हाट वी कैन से, वी नीड टू सर्च फॉर maximum new energy sources, and we have to work on how that energy source will be economical, how we can enhance the efficiency of the existing energy sources. Next comes that is energy, new sources of energy we need to go for. We need to check the sustainability of new sources, whether it is economical, whether it is affordable, whether it is doable, whether its efficiency is higher than the sources which we are using previously, whether it is a green source of energy. Then we have to think on burning of fossil fuels. We have to cut down the burning of fossil fuels so that less and less pollution will be there, and we must come in the carbon negative countries as well. Next, we have to work on the how we can capture the CO2 and how we can store the CO2. We have to invent new technologies so that this CO2 we can have the maximum utilization of this CO2 at different locations. Now, as per as this forefront or all these 14 challenges of 21st century, where we are focusing more, we are focusing more on the energy. Why we are focusing more on the energy? Earlier as well we have discussed how we are going to discuss, or how we are going to decide that whether that country is developing or whether that country is developed, depending upon basically two things. How is it their transportation, okay, inside their country उनका transportation कैसा है, और second, how much is their energy consumption. जितना energy consumption ज्यादा रहेगा वो उतना ही develop हो जाएगा. मतलब आपके समझ आएगा कि how why we are more focusing on energy, क्योंकि आने वाले समय में energy consumption is expected to increase. और ये जो अनुमान है, how we have reached up to this conclusion, for that one simple energy formula is there. From that easily we can calculate the estimate of global energy consumption. Okay, that formula we will see in the next slide. Before that, we will just go through the estimate of this global energy consumption. In 2008, how much was our population? Almost 6.5 billion people we were on the earth. And how much was the energy consumption? 13.5 terawatt. TW is terawatt. Now, how we are estimating by 2050, 9.4 billion people will be there, and how much will be the energy consumption? That energy consumption might be around 27.6 terawatts. By 2100, the total population of planet Earth will be 10.4 billion people, and the energy consumption will be around 43 tetrawatt. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे 13 से लेके हम कितने गए, 27.6, 27.6 से हम चले गए 43. मतलब ज्यादा हम फोकस या जो ज्यादा अटेंशन है वो एनर्जी की तरफ क्यों दे रहे हैं कि यहाँ पे थ्रू दिस एस्टिमेशन यू विल कम टू नो दैट एनर्जी कंजम्पशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन.
future. Now, how we have calculated this estimation of this energy consumption? Simple formula we have used, that is E is equal to N into GDPC into GAI, and this energy consumption you will get in tetrawatt. Okay, now where E is nothing but the global energy consumption in TW, N is nothing but global population in billions of people, GDPC is nothing but globally averaged production per capita in a dollar per person per year, and GAI is nothing but global average intensity in watts. Okay, now these 14 challenges are mainly depending upon जो भी आपकी geography है या जो location है आपके country का, it is dependent on that as well. Similarly, available energy sources कौन कौन से आपके आपकी जो भी individuals है आपके देश में रहने वाले, वो कितना energy use कर रहे हैं, कैसा energy use कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी क्या है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अलग अलग फील्ड्स में कैसा है, दैट मे बी कमर्शियल फील्ड्स, रेसिडेंशियल फील्ड्स, इंडस्ट्रियल फील्ड्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, या जितने भी सेक्टर हमारे देश में है वहां पे कौन कौन से सेक्टर में कितनी एनर्जी यूज हो रही है. दोज चैलेंजेस आर डिपेंडेंट ऑन दैट. नो, ये तो पूरा एनर्जी का सिनेरियो हो गया. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट कि जो भी हमने केस स्टडीज की है आउट ऑफ दीज 14 चैलेंजेस, माई सेल्फ अलॉन्ग विद फ्यू ऑफ द प्रोफेसर्स और फ्यू ऑफ द कलीग्स अलॉन्ग विद माई फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स पे हमने काम किया है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ केस स्टडी 1, दैट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी. इसमें हमने क्या किया है कि नेशनल हाईवेज जो है वो ले लिए. नेशनल हाईवेज में लेट अस थिंक विच प्रॉब्लम्स आर देयर इन अ नेशनल हाईवेज. ये नेशनल हाईवेज देख रहे हो आप, एक लेफ्ट लेन है एक राइट लेन है, इनके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है कि मीडियन है. यहाँ पे हमने कुछ जो ग्रीन ट्रीज है वो प्लांट की है. तो उसके साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं उनका पोल्यूशन हो रहा है, देन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. अगर यहाँ से लेके मुझे ये जो रोड की विड्थ है वो अगर बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, इस साइड में जो भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं वो काटेंगे और वहां पे हम डिफॉरेस्टेशन करके इसकी विड्थ बढ़ाएंगे. देन रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स है, ये जो है यहाँ पे जो भी हम ट्रीज प्लांट कर रहे हैं वो उतने डेंस प्लांट नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है. मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये अगर पेड़ मुझे जिंदा रखने हैं तो उन्हें पानी वगैरह देना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, वी हैव टू मेक देम अलाइव. देन रेन वाटर, यहाँ पे जो भी पानी गिरेगा बारिश का, that we are not going to store at some place, that's why rain water जो है वो पूरा वेस्ट जा रहा है. these are nothing but few of the problems as far as our Indian national highways are concerned. तो उसके लिए हमने कौन सा solution propose किया. बाय द वे यू कैन ऑल्सो थिंक, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन गिव यूर वैल्यूएबल सजेशंस एंड फीडबैक. हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये जो मीडियन आपको दिख रहा है ये, इसमें हमने क्या कर लिया कि वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन जो है वो यूज कर लिए. लेकिन खाली वही यूज नहीं किया, दैट वी हैव यूज्ड अलोंग विद सोलर पैनल्स, ताकि जब भी यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो कम हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, जो सोलर पैनल्स है वो सोलर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वहां पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जो पोल्स वगैरह रहेंगे उन्हें एनलाइटन करने के लिए, दैट वी कैन हैव. देन नेक्स्ट वी हैव प्रपोज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पे जो भी पानी गिर रहा है दैट वी आर गोइंग टू स्टोर विद द हेल्प ऑफ हैविंग सम ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड. Then we are going to suggest few of the species which are dense and lower in height at the median of this national highways. This is nothing but our solution, with the help of which what we can do, we can reduce all these problems, okay, to a somewhat extent. that pollution है, deforestation है, risk of accidents है, maintenance है, then rain water wastage है, all these problems will be taken care greatly with the help of all these changes which we have suggested. If you want to know more regarding this project or what we are going to do exactly, what are the dimensions, which modifications which we are going to have, for that what we need to do, you need to wait till this end, till the end of the presentation. Our team will be sharing our contact details and you can contact us. We will be very much happy to share all the project reports with you all. Okay, I hope that everybody might have understood the first case study. Now let us go ahead with the second case study. That second case study is challenges of zero energy building.
Okay, out of that we have selected only one problem, that is sanitary pad. Many more problems are there, still we have focused only on sanitary pads. उसके साथ आप डायपर्स भी ले सकते हो, या तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स करने के लिए किन चीजों की जरूरत रहेगी, दैट आल्सो यू कैन थिंक ऑन. But out of that we have selected only sanitary pads. I think so everybody is aware of sanitary pads, where we are going to use, where we are going to have its degradation, or where we are going to how or where we are going to discard these sanitary pads. तो उसके साथ प्रॉब्लम कौन कौन से है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, हमारा जो हाइजीन है वो हाइजीन भी उसकी वजह से अफेक्ट करता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो वेस्ट मैनेजमेंट अभी तक उतना नहीं है हमारे इंडिया में. तो उसके लिए हमने सोल्यूशन क्या प्रपोज किया, तो उसके लिए कुछ अलग अलग डिवाइसेस है, अलग अलग मॉडिफिकेशंस है दैट वी हैव डन. बिफोर दैट जो भी प्रॉब्लम है, लेट अस डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन डिटेल. अभी जो हमारा इंडिया है उसमें कितनी महिलाएं हैं, लगभग 46 टू 48 करोड़ जो वुमेन्स है वो अभी क्या कर रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका उस फेज के थ्रू जा रही है, ऑलमोस्ट 46 करोड़. तो उतने सारे लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं या महिलाएं हैं दोज हु आर यूजिंग द सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग देयर पीरियड्स. तो गवर्नमेंट तो बताता है कि ऑलमोस्ट 17% वुमेन्स आर यूजिंग द सैनिटरी पैड्स, बट एट एक्चुअल अभी ये हम फिगर एक्चुअल आपको क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क रिगार्डिंग द menstrual hygiene. Okay, at the end of this presentation, if time permits and if you are going to allow, we are going to discuss regarding the menstrual hygiene as well. Okay, तो एक्चुअली ऑलमोस्ट 7 to 8% वुमेन्स ओनली आर यूजिंग द सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग देयर पीरियड्स. और इसके साथ दिक्कतें क्या क्या है, अभी जो सैनिटरी पैड्स हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद वो सैनिटरी पैड्स कहाँ पे रख देते हैं, अलग कोई सिस्टम्स नहीं है कि जहां से हम वी आर गोइंग टू कलेक्ट यूज सैनिटरी पैड्स, एंड अलग व्हाट वी कैन से फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन एटलीस्ट इन इंडिया इट इज नॉट देयर, सो दैट वेयर दोज यूज सैनिटरी पैड्स विल गो एंड देयर वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड इट, और वी आर गोइंग टू हैव द डिकम्पोजिशन ऑफ दोज सैनिटरी पैड्स. तो हम क्या करते हैं, जो भी हम कचरा फेंकते हैं वहीं पे फेंक देते हैं, वहां से वो कहा जाएगा, जो भी डंप यार्ड रहेगा आपकी जो सिटी है उसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या ग्राम पंचायत हो उसका कॉर्पोरेशन हो, वहां पे चला जाएगा. एंड एंड मोस्ट ऑफ द सैनिटरी पैड्स दे आर गोइंग टू यूज द नायलॉन, और दे आर गोइंग टू यूज द प्लास्टिक. और आपको पता है प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है. तो मान लीजिए यही 7% जो महिलाएं हैं आने वाले 5 सालों तक अगर सैनिटरी पैड यूज करती रही, तो इन कमिंग 5 years ओनली आप जहां पे खड़े हैं विद इन दैट स्क्वायर फीट एरिया अराउंड 21 to 22 यूज्ड पैड्स विल बी देयर. समझ पा रहे हैं आप? ओके, जितना परसेंटेज महिलाएं अभी सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं उतनी ही अगर करती रही तो आने वाले 5 सालों में लगभग क्या हो जाएगा कि जहां पे आप खड़े हैं उस एक स्क्वायर फीट में लगभग 21 या 22 यूज किए हुए सैनिटरी पैड्स रहेंगे. अगर वो यूज किए सैनिटरी पैड्स आपके आजू बाजू रहेंगे, वेदर इट इज हाइजेनिक, दैट वी हैव सिलेक्टेड हियर एज अ प्रॉब्लम. तो उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या दे सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया कि इंसिनरेटर्स है, सैनिटरी पैड्स है, सैनिटरी पॉट्स है, ये हमने क्या कर लिया कि फैब्रिकेट कर लिए. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस, वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, वी विल डिस्कस ओनली रिगार्डिंग द इंसिनरेटर्स. तो इंसिनरेटर्स में हमने क्या कर लिया कि एक जो पॉट होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, दैट वी हैव सिलेक्टेड एंड वी हैव आवर डिजाइनिंग, एंड इनसाइड दैट वी हैव प्लेस्ड वन हीटर. तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यूज किया सैनिटरी पैड उसके अंदर डाल देंगे इनसाइड दैट इंसिनरेटर, व्हाट दैट इंसिनरेटर विल डू, दैट पैड विल गेट बर्न, एंड जो भी एशेस कलेक्ट हो जाएंगे दैट वी कैन कलेक्ट एट द एंड ऑफ द पॉट. ओके, तो जो एशेस है रिगार्डिंग दैट आल्सो वी हैव डन फॉर डिफरेंट टेस्टिंग वेदर दैट बर्निंग ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स विल क्रिएट सम पोल्यूशन, विल क्रिएट सम hazardous gas, so that it will be riskful or harmful to all of us, that also we have done. तो उसमें कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है, जो भी ऐश आपकी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है दैट यू कैन यूज एज अ फर्टिलाइजर. जो भी आप क्या बोल सकते हैं, आपके घर में गार्डनिंग वगैरह करते हैं, इनसाइड दैट यू कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर. तो उसका मल्टीपर्पज भी हो जाएगा, सैनिटरी पैड्स आपको कहीं पे फेंकने की जरूरत भी नहीं रहेगी. और इसकी जो प्राइसिंग है वो इतना इकोनॉमिकल है कि जितने में आपका पैड का पैकेट आता है लगभग 35 रुपीज में लिस्ट पॉसिबल जो है वो आपका पैड का पैकेट है, लगभग उसकी ही प्राइस में आपको ये जो इंसिनेटर है जो हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ डेवलप किया है दैट वी आर गोइंग टू सप्लाई.
अभी सैनिटरी पैड्स की दिक्कतें और क्या क्या है उसमें, अब नायलॉन या तो प्लास्टिक है ताकि दूसरी साइड में जो लीकेज है वो ना हो सके। तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि जो सैनिटरी पैड्स हमने तैयार किए हैं उसमें हमने 100% कॉटन यूज किया है। और उसकी जो कीमत है, अभी कोई भी आप इंडस्ट्री का जाइए या कोई भी ब्रांड का पैड लीजिए, उसकी कीमत कितनी है, 5 से 6 रुपीज पर पैड है। लेकिन जो हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ बनाया है, इट्स प्राइस इज अराउंड 1.8 रुपीज पर पैड। मतलब 1 रुपये 80 पैसे में आपको एक पैड मिलेगा। उसमें जो भी हमने नायलॉन प्लास्टिक यूज नहीं किया है, 6 महीने के अंदर जो भी चीजें यूज की है, दोज ऑल आर हाइजेनिक टू योर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और आपकी हेल्थ के लिए भी उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, दिस वाज द केस स्टडी नंबर 2। और जो तीसरी केस स्टडी है दैट इज सोलार थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन। तो फिर से वही है, हाईवेज का प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे पोल्यूशन हो सकता है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ये जो तुर्की देश है उसमें एक ऐसा मॉडल इंस्टॉल किया है। उसमें क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में वर्टिकल एक्सिस विंडमिल रखा है, यहाँ पे सोलर पैनल है। ये व्हीकल इस साइड से जाएगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से रोटेट होता रहेगा। ये रोटेट होगा तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर पैनल से भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं ताकि स्ट्रीट लाइटिंग के लिए वगैरह हम यूज कर सकें। ओके, नाउ हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि हम अकेले क्या क्या कर सकते हैं। लॉट मेनी लिमिटेशंस आर देयर, लेकिन आप और हम एक साथ मिल जाते हैं देन देयर विल बी नो इन लिमिटेशंस। अगर आते भी है तो आसानी से वी विल कवर अप दोज लिमिटेशंस। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली कि वी हैव collaborated with ईशा फाउंडेशन एंड देयर वी आर रनिंग दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारा गैप है लगभग पर पर्सन 800 ट्रीज वी नीड टू प्लांट, उसके रिगार्डिंग हमारा प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स है। उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके जो भी आपके जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, दैट में भी बर्थडेज एनिवर्सरीज, आपको प्रमोशन मिलता है, आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, या आप जो भी सेलिब्रेशन करते हो घर में, आपको क्या करना है कि हर एक सेलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि पेड़ लगाने हैं। ओके, या तो कहीं पे कोई गिफ्ट लेके जाने वाले हैं तो व्हाट वी कैन चूज, बाकी गिफ्ट ले जाने की वजह पे आप क्या कर सकते हैं, कोई ट्री लेके जा सकते हैं या कोई सैपलिंग लेके जा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, आप कोई भी गिफ्ट दे दीजिए, वो 1 महीने तक, 1 साल तक, 10 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक सामने वाले इंसान को क्या करेगा, मदद करता रहेगा। लेकिन अगर उससे आप कोई पेड़ देते हो तो आने वाले उसकी पीढ़ी को तो देगा ही वो बेनिफिट, उसके साथ आने वाली जितनी भी पीढ़ियां रहेगी हर एक को वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो आप ही चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट देना पसंद रहेगा। ऐसा कोई गिफ्ट दे दे जो उसके लिए ही यूजफुल हो, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। या ऐसा कोई गिफ्ट चूज करो कि वो सालों साल उसके जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी मदद करता रहेगा। जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो क्या है कि से यस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अभी तो हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कर ली। जो हम इंसिनरेटर्स डेवलप कर रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। जो पैड्स हम डेवलप कर रहे हैं इको फ्रेंडली, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। ओके, और इन सब से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, देयर कम्स आवर थर्ड प्रोजेक्ट दैट इज एजुकेशन और एजुकेट अ रूरल चाइल्ड। मतलब ये जो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उसमें हम क्या करते हैं, हर साल एक कंपटीशन लेते हैं, अलग अलग लेवल के जो हमारे एजुकेशन होता है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, देन ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। हर एक के लिए हम अलग अलग एग्जाम्स लेते हैं और एग्जाम्स में जो भी गरीब बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे जो भी एक्सीडिंगली वेल परफॉर्मेंस दिखाता है उसका जो भी एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे, जो वो एजुकेशन लेना चाहेगा वो वहाँ पे जाके ले सकता है, उसकी फीस दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर along with you all. Now, I hope so कि you have understood all these projects, Project Green Hands, Project Say Yes to Menstrual Hygiene, Project Educator Rural Child. इसके साथ हम बहुत और दो इनिशिएटिव्स है वो रन करते हैं। एक है सेल्फ हेल्प फ्राइडे, उसमें हम क्या करते हैं, हर शुक्रवार को शाम को 9:30 बजे हम क्या करते हैं, कोई एक सेल्फ हेल्प कैटेगरी का, ओके, द बुक विच आर गोइंग टू हेल्प अस टू एनहांस आवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, जो भी है उसकी जो समरी है
तो समरी जो है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि यू कैन हाउ इम्प्रूवमेंट्स इन योर प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ। वो कब होता है? हर फ्राइडे को शाम को 9:30 बजे। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो आने वाला मंडे है उससे हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट रीड विथ मी। ओके, रीड विथ मी क्या मतलब? इस दुनिया में जितने भी है, लेट इट बी एनी सक्सेसफुल पर्सन, दैट मे बी मिलियनियर, बिलियनियर, या जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स है, या जो भी एक्सीडिंगली वेल कर रहा है अपने फील्ड में, वो क्या बताते हैं कि हर रोज आपको कुछ ना कुछ तो रीड करने की जरूरत है। लेकिन ये जो हमारा अभी दुनिया बना है वो क्या है, फास्ट पेस पे चल रहा है, तो आपको उतना समय तो नहीं मिलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, और व्हाट आवर ड्रीम इज ट्राइंग टू डू, हम क्या करेंगे कि हर सुबह 7:30 बजे और शाम को 9:30 बजे हम क्या करेंगे, आपके लिए कोई 15 या 20 मिनट का सेशन रखेंगे। वो ऑनलाइन रहेगा, आप जहां मर्जी चाहे, जिस डिवाइस से चाहे वहां पे बैठ के एक्सेस कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि आपके लिए, आपने जो सजेस्ट किया रहेगा, या जो भी सक्सेसफुल मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, स्पिरिचुअल लीडर, या जो भी अपने फील्ड में एक्सटेडिकली वेल कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज लेके उनसे जो भी बुक्स रिकमेंडेड लेते हैं उनका हम रीडिंग शुरू कर देंगे, हर रोज सुबह 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट। और ये हम आने वाले मंडे से शुरू कर देंगे। तो जैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, देन हियर इज माय ईमेल आईडी एंड पर्सनल मोबाइल नंबर, यू कैन राइट टू अस। एंड हियर आर अ फ्यू लिंक्स। ये जितने सोशल मीडिया के हैंडल्स है, ऑन ईच एंड एवरी सोशल मीडिया हैंडल यू कैन सर्च फॉर हैशटैग PROFD फॉर दत्तात्रेय, S for Sukhdev, GHODAK. You can search for that. The things which we are doing, or the initiatives which we are running, you will come to know. And finally, thank you all aboard for patient hearing. थैंक यू एंड बेस्ट लक। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ऑलरेडी आई हैव गिवन माय पर्सनल ईमेल आईडी एंड पर्सनल मोबाइल नंबर, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।